So, quick disclaimer before you guys start watching the video. This video is not a hospital video. This does not have any clips, doesn't have any machines, and please, it does not even have a lot of drama. This is simply me sharing the real version of what a C section delivery looks like. And not only looks like, what it feels like. Changes happen to you as a mama, and what you experience as a mama during the entire process. Hi everyone, welcome back to the Life of Mama. अगर आप लोग यहाँ तक देख रहे हैं, it means you actually want to understand what a C-section delivery looks like and feels like, and as a mother, what should you be expecting? So I'm going to start from the very beginning. So the doctor also suggested that we will go for a normal vaginal delivery. Now I want to say something here. There's nothing as a normal delivery. या तो vaginal delivery होती है या C-section delivery होती है. Let nobody tell you that normal delivery is vaginal delivery and C-section delivery is not normal delivery. I mean, this is stupidity for all of those who actually think like that. I mean, pity on the people who think like that. I was all prepped up for having a vaginal delivery, and इसी वजह से because till the very last moment मुझे इस बात का आइडिया ही नहीं था कि सी सेक्शन भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरे लिए, बिकॉज डॉक्टर्स डिड नॉट रियली सजेस्ट या मेंशन कि आपके लिए एक ऑप्शन निकल के आएगा. आई मीन ऑफ कोर्स शी इन्फॉर्म मी अबाउट द टू काइंड्स ऑफ डिलीवरीज एंड कैसे भी हो सकता है लास्ट डे पे, बट आई थॉट कि ठीक है वजाइनल डिलीवरी करानी है वही कराएंगे, और सब कुछ ठीक जा रहा था तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, व्हाई इवन बॉदर अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ सी सेक्शन एक्चुअली मीन्स. इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू मेंशन दैट मुझे जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी. सो आई यूज टू हैव हाई बीपी स्पेशली ड्यूरिंग द 8th मंथ. मुझे बीपी का ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो गया था, जिसकी वजह से 9th मंथ की स्टार्टिंग में आई थिंक वी ओनली completed 38 weeks and I had to go for the induced vaginal delivery. In a long story short, I quickly come to the beginning of us entering into the hospital. तो हम लोग हॉस्पिटल गए, वी गॉट द पेपर वर्क डन, एवरीथिंग वाज डन, एंड देन आई वाज टेकन टू अ रूम, जो कि हमने जो भी रूम बुक किया था सी के बिरला हॉस्पिटल में, तो वी वर टेकन इनटू दैट रूम. एंड क्योंकि मुझे जेस्टेशनल ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी, सो वी हैड टू इंड्यूस लेबर पेन. So, and I was determined that I want to have a vaginal delivery only, which is why I agreed to the option of inducing labor pain. So, induce करने के लिए उन्होंने जो भी तरीका था, so they had given me some injection to induce the pain, and then we would wait for the medicine to kind of work on me and my vagina and the cervix. Cervix को dilate करना होता है before a vaginal delivery can happen. तो वो सब होने के लिए I think once you induce the medicine for labor pain, उसके 6 घंटे तक आपको फिर उसको monitor करना होता है. I got the medicine induced thrice. I had a labor pain for about 16 hours. लेकिन वो सर्विक्स उतना डायलेट नहीं हुआ कि एक वजाइनल डिलीवरी हो पाए. सो द डॉक्टर सजेस्टेड दैट इट्स बेटर कि अब 3 बार ऑलरेडी दे चुके हैं, इससे ज़्यादा हम दवाई दे भी नहीं सकते हैं आपको लेबर पेन इंड्यूस करने के लिए. सो द ओनली ऑप्शन दैट वी हैव इज़ अ सी सेक्शन डिलीवरी. ये एक ऐसा टाइम आ चुका था जब मैं लेबर पेन के चक्कर में, मुझे दर्द तो अच्छा खासा हो रहा था, मतलब जो लेबर पेन का जो पेन होता है, सो आई वॉज एक्सपीरियंसिंग दैट पेन, बट द सर्विक्स वॉज नॉट डायलेटेड इनफ, तो वजाइनल डिलीवरी ऑफ कोर्स पॉसिबल नहीं हो पा रही थी. बट आई वॉज सो much in pain that phone उस समय इस्तेमाल करना और ढूंढना what is a C-section delivery, it was just something जो दिमाग में ही नहीं आता. मतलब आपके उस टाइम पे you can't really think of anything else apart from the pain that you're feeling. So मेरे साथ में जो हुआ पहले मैं वो बताऊंगी, और उसके बाद में जो मैंने ढूंढा इंटरनेट पे, उसके बाद में मैं वो आपसे शेयर करूंगी. So the first part of the C-section operation was getting me ready for the operation. I was given a gown. I was taken to a separate room where my body down the stomach was shaved. उसके बाद में हमें करना था एक एपिड्यूरल का इंजेक्शन. नाउ इस पूरे प्रोसेस में there's a lot of waiting that happens. हो सकता है आपकी डॉक्टर को किसी और की डिलीवरी भी देखनी हो, या फिर हो सकता है कि आपकी
maybe something as a lunch break or something, and all of this, it's completely normal for the staff, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने जो आपको दवाइयाँ दे रखी हैं आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हाँ कुछ चीज़ें की वजह से देर होती रहती है। तो वो 5-5 10-10 मिनट भी जो आपको अकेले वेट करना होता है, उसमें यू फील दैट पूरी दुनिया बदल चुकी है, सब कुछ हो चुका है, व्हाई आर पीपल नॉट कमिंग एंड अटेंडिंग मी? You feel really, really anxious at that point of time. I was feeling so anxious throughout, and I was just insisting, please send my husband inside the room, please send my husband inside the room. And they were like, epidural का इंजेक्शन लग जाने दो मैम, उसके बाद में आपका जब प्रोसीजर स्टार्ट होगा तब आपके हस्बैंड आ जाएंगे आपके पास में, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट. एंड the way the medical professionals and the doctors speak to you and the nurses speak to you, they have this smile on their face, but you at that point of time feel हंस के मुझसे बात मत करो, just send my husband inside the room to me, because I'm feeling all alone inside and I'm completely clueless about the procedure. So so मुझे एपिड्यूरल का इंजेक्शन दिया गया था. स्पाइन के आई थिंक लोएस्ट वर्टेब्रे पे दिया जाता है वो वाला इंजेक्शन. एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू, माई सजेशन इज़ प्लीज़ डू नॉट लुक एट द नीडल. वो नीडल देख के ऐसा लगता है कि मतलब वो किसी बड़े एनिमल को जो दी जाती है ना, जैसे पुरानी मूवीज़ में दिखाया जाता था कि भैंस के पीछे या गाय के पीछे जो बड़ा सा इंजेक्शन, मोटा सा इंजेक्शन लेके भाग रहे हैं लोग. सो उसकी नीडल, जो एपिड्यूरल का इंजेक्शन होता है उसकी नीडल बहुत लंबी होती है. इट्स वेरी वेरी पतला सा नीडल, बट इट्स अ लॉन्ग नीडल एंड यू गेट स्कैर्ड इफ यू have a look at it. I saw it. I was scared like anything, but there wasn't anything that I could do about it. So quickly मैंने अपना बस डर अपने अंदर छुपा के रखा. और उन्होंने जब इंजेक्शन मुझे दिया, of course it pinched a little, it did pain a little bit, लेकिन ऐसा नहीं था कि आप सह नहीं सकते हो वाला. It's a bearable amount of pain that you have to endure, so that you don't have to endure the rest of the pain which happens because of the operation. तो एपिड्यूरल का इंजेक्शन लगने के बाद में जब मेरी बॉडी, लोअर हाफ ऑफ द बॉडी मेरा काफ़ी नम हो गया था, तब मेरे हस्बैंड आ गए थे एंड ही वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी. मतलब आई वाज लाइंग डाउन ऑन द हॉस्पिटल बेड इनसाइड द ओटी, और मेरे हस्बैंड मेरे बगल में बैठे हुए थे. एंड दे हैड कवर्ड लाइक अब्डोमेन से हमने एक पर्दा टाइप का सब कुछ लगा दिया था उन्होंने. सो इट वॉज काइंड ऑफ कवर्ड, सो आई कुड नॉट सी. अगर इवन मैं उठ के बेंड होके देखने की कोशिश करती तो मैं नहीं देख सकती थी, क्योंकि इट वॉज ऑल कवर्ड. एंड इवेंचुअली आई सॉ द डॉक्टर कमिंग इन. एंड पहले तो मुझे इतनी टेंशन हो रही थी मेरी वाली डॉक्टर आएंगी या नहीं आएंगी. पता चला उनको कुछ और इमरजेंसी आ गई हो जिसकी वजह से उन्हें कहीं और जाना हो और फिर वो मेरे पास ना आ पाए. बिकॉज यू नो द डॉक्टर्स एक्चुअली टेल यू कि हो सकता है हमें कोई इमरजेंसी हो तो हम आपको अटेंड ना कर पाए, उस बड़ी इमरजेंसी को अटेंड करें. तो मेरे को तो उस बात का भी स्ट्रेस था कि मुझे मेरी डॉक्टर ही चाहिए, द वन दैट आई एम कंफर्टेबल विद. उन्हीं के साथ में मैं ये पूरा ऑपरेशन करवा पाऊंगी, अदरवाइज आई एम नॉट गोइंग टू गेट द ऑपरेशन डन इफ शी इज नॉट देयर. Then the doctor came in and within 5 minutes of her coming in, मतलब सब उन्होंने पूरा प्रोसेस डन सब कुछ किया, and within 4-5 minutes I heard the cry of my daughter. And once I did that, nothing else mattered. मैं बाकी सब कुछ भूल चुकी थी. All I could see was my daughter being picked up and taken and escorted by another medical staff. कोई और नर्स जो है उसको, कृषा को उसके जो साइड में जो बेबी के लिए बेड होता है उस पर लेके जा रहे थे. मैं नज़रों को ऐसे ही तिरछी करके, जितना मैं बेंड कर सकती थी अपने नेक को, जितना मैं खुद को मतलब मैं जितना मैं खुद को कर सकती थी कि मैं मोड़ के देख पाऊँ कि क्या कर रहे हैं वो लोग मेरे बेबी के साथ में, मेरा बेटा कैसा दिखता है, मेरा बच्चू कैसे दिखता है. सो the entire attention had drifted to my baby, and the doctors and the other nurses, everyone was busy tying me up and stitching me up and everything. So it's just the first few minutes of the operation which kind of
मेक यू फील एंग्शियस या आपको टेंशन हो रही होती है कि अरे अरे क्या होगा क्या होगा, उसके बाद में सब बढ़िया हो जाता है. So once the operation was done, once Krisha was out and उसके जो भी टेस्ट वगैरह थे वो सब हो रहे थे and she was being cleaned up and everything, उसके बाद में मुझे ले जाया गया दूसरे रूम में. It was kind of a, it had so many other, I don't know उस रूम को बोलते क्या है, it's like an observation room or something, but I found myself shivering to the core. Like जब मुझे escort किया जा रहा था from the OT to the observation, the other observation room, I started shivering and I had no clue why am I shivering. और मेरी इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि मैं किसी से कुछ बोल पाऊँ, because I was, I couldn't even mutter out words out of my mouth. It was so cold. It was like फ्रीजिंग, मतलब माइनस टेम्परेचर्स जो होते हैं ना, वैसा कुछ हाल हो रखा था मेरा उस टाइम पे. एंड आई वाज जस्ट वेयरिंग दैट हॉस्पिटल गाउन और मुझे ऊपर से एक शीट से कवर किया हुआ था. हिम्मत जुटा के मैंने नर्स को बोला प्लीज़ मुझे एक और ब्लैंकेट दे दो, मुझे बहुत ठंड लग रही है. वो भी मैं ऐसे करके ही मैंने कुछ उसको बोला होगा. शी वॉज काइंड इनफ टू गिव मी टू एंड शी कवर्ड मी. बट आई रिमेंबर 10-15-20 minutes, I mean, I don't even know the count. होंगे वो 15-20 मिनट मुझे लग रहे होंगे. हो सकता है वो ज़्यादा टाइम हो कम टाइम हो, but at least for a good 20-25 minutes I was shivering like hell. That I later understood that this shivering, this feeling cold was a reaction of the anesthesia that was given to me, and it is normal. But it was frightening for me. And then my baby was brought to me. मुझे ऐसे स्किन टच कराया था, फिर मेरे पास में लिटा दिया था कृषा को. उसके बाद में मुझे थोड़ा नॉर्मल लगने लगा था, बिकॉज अगेन माई अटेंशन है डाइवर्टेड फ्रॉम माई सेल्फ टू माई डॉटर. तो फिर मुझे ठंड लगना, और वैसे भी एनेस्थीसिया का असर तब तक थोड़ा कम हो चुका था, तो वो ठंड लगना भी मुझे कम हो गया था. बट अदरवाइज that was a very very difficult and a very frightening time, because I did not know कि ये जो हो रहा है मेरे साथ में वो नॉर्मल हो रहा है या क्या हो रहा है. फिर मुझे और कृषा को हमारे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था. दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय एक्सपीरियंस ऑफ having a C-section delivery was. ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया. In the next video I will share with you day 1 of how I felt after the delivery was done. जब हम हमारे रूम में शिफ्ट हुए हैं उसके बाद की कहानी जो है वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी in my next video. So stay tuned and I'll see you next week.